Okay, we have discussed 5 command: create, alter. We have discussed create, alter, truncate, drop, and rename. That was the second part. We have discussed how you have to write your practical. You have to perform exercises of part 1. Today we are discussing part 2, applying constraint. Constraint can be also applied when we create the table. Constraint application is also a DDL. We have discussed yesterday what is meaning of data definition language. Creating and managing database object, that means creating database structure to create the schema of the table, to create the schema of database, that is known as a, those commands are known as a data definition language, DDL. So we have seen how to create table and manage it. Now today we will discuss how to apply different types of constraints on it. Now what is meaning of constraint that we have discussed? Constraint means rules on table level. Constraint enforce rules on table level. In our previous lecture, we have also discussed again that if you have to specify the CPI of a particular student, it must be from 0 to 10. It cannot accept the value greater than 10 and less than 0. Then that is a rule. Okay, whenever you have created table, at that time you have to specify some rule. So we can say it is a one type of constraint. आपको टेबल जब बनाते हो, लास्ट टाइम पे हमने जो टेबल बनाया था वो जस्ट टेबल थे. वी हैव नॉट अप्लाइड एनी रूल ऑन दोज टेबल. बट टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू अप्लाई रूल्स ऑन टेबल्स. ओके. कंस्ट्रेंट प्रिवेंट द डिलीशन ऑफ द टेबल इफ देयर आर डिपेंडेंसीज. मतलब रॉन्ग वैल्यू को आने से तो रोकता ही है. इट विल प्रिवेंट द unnecessary value as well as it will prevent the deletion of the data if there are dependencies. ओके. वो डेटा को डिलीट करने से आपको रोकता है अगर डिपेंडेंसी है तो. ओके. नाउ इफ I will remove some student detail from computer department table, but if that table is also available in admin as well as in KSP. So now question is that whenever I remove some information of particular student from computer database, whether it will be allow or not, that is a question. Either वो allow करेगा या नहीं करेगा. When it will not allow, because once I remove some information of student from computer table, it must be also removed from admin database as well as from KSV database. अगर ये possible है तो आपका record मैं delete कर पाऊंगा. If it is not possible, then I cannot delete your data from computer database. That is only possible by using DBMS. अगर वो database में है, if we have specified some rules, some constraints on our database, then it is possible. If constraints are not there, if database is not there, then it will automatically allow me to delete. मैं अपना record delete कर दूंगा तो कंप्यूटर में से डेटा निकल जाएगा, एडमिन में और KSP में रहेगा. So it will create inconsistencies that we have discussed. What is meaning of inconsistency? Okay. So there are 5 types of constraints in database. Again, it is the interview question और एग्जाम क्वेश्चन. इंटरव्यू में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं. क्यों? बिकॉज वेन एवर वी क्रिएट एनी डेटाबेस फॉर एनी एप्लीकेशन, वी मस्ट हैव टू डिफाइन स्पेसिफिक रूल्स. हर एक कंपनी के अलग अलग अपने अपने रूल होते हैं. डेटाबेस के ऊपर ऐसे ऐसे रूल बनाने पड़ते हैं. बेटा कौन છે મોન तुझे? વાંધો નહીં, નાવ પાડીશ, નાવ પાડીશ. Okay. So you must have knowledge. So whenever you go for interview, any company will ask about you, whether do you know this thing or not. So first is a not null constraint. We will discuss all one by one. So this is our practical, including constraint or applying constraints. What is a constraint that we have known? Types of constraints: not null constraint, unique constraint, primary key, foreign key and check. 5 टाइप के कंस्ट्रेंट है. ये आपको याद रखने हैं थ्रू आउट योर लाइफ. नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड चेक. कंस्ट्रेंट गाइडलाइन. नेम ऑफ अ कंस्ट्रेंट
We have to provide name of the constraint. If we will not provide the name to the constraint, then Oracle server generate unique name automatically. और वो नाम कैसे स्टार्ट होगा? sys underscore cn, sys underscore c, उसके बाद एक नंबर होगा. So in an organization and in a software industry, it is always necessary that you have to provide constraint name. Whenever you create the constraint, you should provide the name. आपको नेम देना पड़ेगा. जरूरी नहीं है, it is not necessary, but it is advisable. Okay, create a constraint either when we create the constraint at the same time as table is created. Constraint कब बनते हैं? जब table बनता है तब. So whenever we create the table, we have to provide the constraint. Again, second option, after table has created, means table is already created and later on you want to provide the constraint, तो भी आप कर सकते हो. Okay, we can define constraint at the column level as well as table level. We can view the database constraints by using data dictionary. Still we have not discussed what is meaning of data dictionary. We will discuss again. Later on we will discuss. So whenever we create any type of operation in database, database will always maintain log. वो log maintain करता है. Okay, आप कुछ भी करो तो database में log maintain रहता है. Okay, same way whenever we create any constraint, then that information is already maintained in database automatically. वो database में maintain रहती है. How to create the constraint? Create table, that we know. Create table, table name. Provide the column name, data type and size. ये हमें पता है. Second column, first name and first underscore name, varchar 2 or 20, ये भी पता है. That means we know how to create column. So when we define the constraint, whenever we create the table, now let's say assume that I want to apply that job ID of a particular employee, it should not be blank. It should not be blank. वो खाली नहीं होनी चाहिए. So specify the column name, data type, size. अब तक क्या करते थे हम? साइज के बाद कॉमा कर देते थे. बट इफ यू वांट टू अप्लाई कंस्ट्रेंट, अगर आपको रूल स्पेसिफाई करना है तो स्पेस करके रूल का नाम लिखो. रूल इज अ नॉट नल कंस्ट्रेंट. नॉट नल कंस्ट्रेंट, दैट मीन्स it will not provide the null value. Null means nothing, blank. कई बार कुछ वेबसाइट में आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो some fields are mandatory, वहां पे स्टार लिखा हुआ होता है. Some fields are mandatory, you must have to provide that value. If you will not provide the value, तब तक वो आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं देगा. That means for a particular column, for a particular text box, we must have to provide the value. जब हम रजिस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं वेबसाइट से तो वहां पे जो वैल्यू डालते हैं और जब ओके प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है? आपकी इंफॉर्मेशन टेबल में स्टोर हो जाती है. योर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन सम पर्टिकुलर टेबल एंड इन दैट टेबल द रूल इज डिफाइन दैट सम पर्टिकुलर कॉलम शुड नॉट बी नल. इसीलिए वो आपको अलाउ नहीं करता है कि आपको ब्लैंक वैल्यू नहीं रख सकते, आपको वैल्यू देनी ही पड़ेगी, जैसे ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर. ओके, so how to specify the constraint? Column name, data type and size, and then specify the column name. Same way here we have not provided the name to the constraint. हमने not null constraint बनाया लेकिन उसको नाम नहीं दिया. So if we will not provide the name, database will create automatically. Here एक और constraint मैं create कर रहा हूँ. Column name, data type, size, constraint. This is the keyword. Constraint को नाम देना तो कैसे दे सकते हैं? Constraint और फिर constraint name. This is constraint name. emp underscore empid underscore pk. उसका मतलब क्या है कि ये कंस्ट्रेंट के नाम से ही आपको पता चल जाएगा that what is the name of the constraint, this constraint is created on which table, on which column. So here table name is employee, column name is employee id and constraint name is primary key. और उसके बाद primary key and then column name. Let us see practically. Let us log in with HR.
Let us check how many tables are there. Okay, we have created, okay, let's say create one table, student. Create table, student. Now, student name. This is a column. Varchar 2. Size is suppose 20. Now, if I will enter another column, enrollment number. Again, it is Varchar 2. Size is 14. ऐसे मैं जितनी कॉलम चाहिए वो मैं ले लूंगा और एट द एंड जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं उसको सेमी कॉलम करके एंटर करूंगा, टेबल विल क्रिएटेड. बट हियर आई वांट टू प्रोवाइड कंस्ट्रेंट. मुझे कंस्ट्रेंट देना है हियर कि भाई स्टूडेंट का नाम खाली नहीं होना चाहिए. ओके, सो व्हाट आई विल डू, नॉट नल. सो कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज एंड उसके बाद लिख दो नॉट नल और फिर कॉमा. सो हियर वी हैव स्पेसिफाई वन कंस्ट्रेंट कि स्टूडेंट का नाम नल नहीं होना चाहिए ना. एनरोलमेंट नंबर, not null, not null, not null, not null. Now enrollment number. Now I want to create primary key on enrollment number. Okay, let's say assume two columns are there. दो column है यहाँ पे. Okay. So again we have not provided the constraint name. But if I want to provide constraint name, then what I can do? I can write constraint. Constraint का spelling याद रखना. And constraint का नाम. It is a student table. कौन सी column है? Enrollment number. Or which type of constraint? Primary key, PK. So here it will create two columns, student name and enrollment number. Student number, student name should be not null, मुझे नाम देना ही पड़ेगा. And enrollment number के ऊपर primary key बनाई है. Primary key, we have provided the name of constraint to the primary key, but we have not provided the constraint name to the student name. Not null के लिए हमने constraint का नाम नहीं दिया है. Okay, now let us run. Table created. अब मैं उसमें वैल्यू डालता हूं. हाउ टू एंटर द वैल्यू अभी हमने नहीं सीखा है, लेकिन आप जस्ट एज्यूम करो कि कैसे होता है. इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर वैल्यूज करके आपको वैल्यू देनी है. स्टूडेंट का नाम, इट इज अ वेरकेयर, सपोज आशीष. एंड एनरोलमेंट नंबर 19 BECE 3001. सपोज मैं ऐसा डालता हूं. इससे क्या होगा, it will insert one column, one row is inserted. See data, select star from student. आशीष एंड 19 BEC 301 ये एक रो आ गई. सपोज मैं दूसरी बार उसको इंसर्ट करता हूं. दिस टाइम आई हैव नॉट प्रोवाइडेड द value for first column. Just enter the enrollment number, run. Missing expression, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ not null, sorry null. देखो क्या मैसेज आया, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू hr.student.sname. HR यूजर में हम लॉगिन है, स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर एक कॉलम थी s_name, उसको आप नॉट नल नहीं रख सकते. डेट मीन्स आपको नाम देना ही पड़ेगा. सपोज मैंने दिया आशीष पटेल और अब मैंने यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर नहीं डाला. नाउ सपोज आई विल नॉट प्रोवाइड एनरोलमेंट नंबर. नाम डाला लेकिन एनरोलमेंट नंबर नहीं डाला. फिर भी क्या रहा है, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू hr.student.enrollment number. समझ में आ रहा है. इट विल नॉट अलाउ मी. व्हाई? बिकॉज आई हैव स्पेसिफाइड रूल
मैंने उसको रूल दिया है यहाँ पे। देखते हैं, अभी हमने सिर्फ नॉट नल देखा है। ओके, सो वी हैव सीन टू थिंग, हाउ टू प्रोवाइड द कंस्ट्रेंट। जैसे ही कॉलम के डेफिनेशन खत्म हो जाए, कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड साइज, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। इफ यू वांट टू प्रोवाइड द नेम, तो कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, फिर टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट और स्पेसिफाइड। Not null constraint we have seen. How to do this? Just example. Employee number, employee ID, last name varchar to 25 not null, जो हमने दिया अभी। सपोज हायर डेट, एम्प्लॉय की हायर डेट, डेटा टाइप इज डेट, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम नॉट null. Here we have provided the constraint name on higher date column. Type of constraint is not null. This is also type of constraint is not null, but here name is not provided by me. So if I will not provide the constraint name, then system will give name automatically. But if I have specified the constraint name, तो मैंने जो नाम दिया होगा वही जाएगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज अ यूनिक कंस्ट्रेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट? नाम से समझ में आएगा। यूनिक मतलब इट विल नॉट प्रोवाइड द डुप्लीकेट वैल्यूज। यूनिक। email id, I want to put the column, I want to put the constraint on email id that every email id must be unique. Even your enrollment number is also unique. Once one enrollment number is given to one student, same enrollment number cannot be given to the another student, otherwise it will create problem. Result में, fee में, attendance में, सब जगह problem होगा. So if you want to provide unique, you can provide like this: constraint, constraint name and unique. Here जो आपका create table था, create table, staff या फिर faculty, तो faculty underscore id, varchar 2, size is 20, and if I want to provide unique constraint, so do unique, then second column, then third column, then fourth column, and end. Okay, I'm not running this command. So column name, data type, size, and provide the constraint name unique. Unique is a type of constraint. If I want to again still here, constraint name will be given by database automatically. If I want to provide my name, then constraint का नाम दो, क्या है, फैकल्टी टेबल, कौन सी कॉलम, फैकल्टी आईडी, और कंस्ट्रेंट का नाम, कंस्ट्रेंट का टाइप क्या है, यूएन, मतलब यूनिक। तो इतना मैंने एक्स्ट्रा लिखा। अगर ये आप नहीं लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको कंस्ट्रेंट के नाम से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंस्ट्रेंट है, किस टेबल के ऊपर है, कौन से कॉलम के ऊपर है। इट इज एडवाइजेबल। एट द एंड ऑफ प्रैक्टिकल आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा कि ये जरूरी क्यों है। ओके, सो यूनिक कंस्ट्रेंट, व्हाट इज यूनिक कंस्ट्रेंट? यूनिक कंस्ट्रेंट विल बी नॉट अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यू ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो हियर एवरी फैकल्टी का फैकल्टी आईडी यूनिक ही होगा। कोई नया फैकल्टी आज ही रिक्रूट होता है, उसका एनरोलमेंट एंड फैकल्टी आईडी अगर मैं 1 देता हूँ, इट विल नॉट अलाउ। व्हाई? बिकॉज 1 नंबर का फैकल्टी ऑलरेडी है। You have to provide unique value. Unique means not duplicate. Primary key, this is very important. Primary key means what? Once you specify primary key on a particular column, it will not allow null value. That means we must have to provide the value for that. Second, it will also not allow the duplicate values. We have a not null constraint. एक not null constraint था, उसका काम क्या है, वो null value allow नहीं करता है।
यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब क्या था? इट विल नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू. So not null constraint, unique constraint. Not null will not allow the null value, blank value. Unique will not allow duplicate value. Now combination of both, it is known as a primary key. So once you specify the primary key on a particular column, it will not allow the blank value as well as it will not allow the duplicate value. समझ में आ रहा है? डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं करेगा और ब्लैंक भी अलाउ नहीं करेगा, और ये जरूरी है. So what is difference between primary key and unique? Okay, this is your exercise. In next lab I will ask कि हमने सीखा यूनिक कंस्ट्रेंट एज वेल एज प्राइमरी की. तो प्राइमरी की और यूनिक में डिफरेंस क्या रहा? दैट यू हैव टू गिव मी द आंसर. So once you specify the primary key, it will not allow duplicate value as well as null value. तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट नाम यूनिक की जगह मैं क्या लिखूंगा? पीके, प्राइमरी की, और यूनिक को निकाल के मैं क्या कर दूंगा? प्राइमरी की. Okay, so it will create. Now assume second column, faculty name, varchar2, size is 20, not null. Okay, third, salary, number 5. There are 3 columns. We have primary key on faculty ID, not null on faculty name, and salary. Salary में कोई constraint नहीं है. Suppose I run this command, table तो बन गया. Now insert data, insert into faculty values. पहले आएगा faculty ID. सपोज LDRP अंडरस्कोर varchar है तो सिंगल कोटेशन में लिखना पड़ेगा LDRP अंडरस्कोर CE अंडरस्कोर 1. सपोज ये कोई ऐसा एम्प्लॉय है. फिर उसका नाम सपोज संजय, और उसकी सैलरी मानो की है 50,000. लेट अस रन इट. सर आपने इंसर्ट का स्पेलिंग क्या हुआ? इंसर्ट का स्पेलिंग सर रॉन्ग लिखा है. इंसर्ट. ओके, इंसर्ट. Okay, one row is created. We have provided the value. प्राइमरी की था तो हमने उसको वैल्यू दी. यहाँ पे नॉट नल था तो भी वैल्यू दी, और यहाँ पे सैलरी कंस्ट्रेंट था लेकिन वैल्यू दी. सपोज यहाँ पे मैं दूसरा एंटर करता हूँ, एम्प्लॉय नंबर 2, उसका नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, तो सपोज नल, और सैलरी 50,000. कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू फैकल्टी नेम. फैकल्टी नाम तो देना ही पड़ेगा भाई. तो यहाँ पे मैं देता हूँ प्रतीक. तो रन हो गया. तीसरा फैकल्टी है मनोज, और यहाँ पे मैं सैलरी नहीं दे रहा हूँ. चलो उसकी सैलरी नहीं है, ओनली 2 कॉलम, उसका नंबर और नाम. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रन. नॉट इनफ वैल्यूज, मतलब 3 कॉलम थी और आपने वैल्यू 2 ही दी है. तो यहाँ पे डिस्क्राइब फैकल्टी,
क्या नाम था, FID. So insert into फैकल्टी, दो कॉलम लेते हैं हम, F_ID, कॉमा F_name, और दो के लिए मैं वैल्यू दे रहा हूँ, वैल्यूज. फैकल्टी आईडी क्या था, LDRP_CE_4, और ये है मानो कि धर्मेश. ओके, आउट ऑफ 3 कॉलम आई वांट टू एंटर ओनली 2 कॉलम्स, और दो की वैल्यू मैंने दे दी, उसका एम्प्लॉय आईडी और उसका नाम. सैलरी मैंने नहीं दी. अब कहाँ बोलेगा, इंसर्ट इनटू फैकल्टी, दो कॉलम, वैल्यूज LDRP धर्मेश. इट्स ट्रू यार, ऐसा थोड़ी जरूरी है तीनों कॉलम मुझे एंटर ना भी करनी हो. इंसर्ट इनटू फैकल्टी, फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, दो वैल्यू दी मैंने, फैकल्टी का आईडी दिया और उसका नाम दिया. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे सैलरी एंटर करना ही पड़े. रो इज इंसर्टेड. We have not provided the salary, but still the value is inserted. See the data. इसकी सैलरी नहीं है, तो उसने क्यों अलाउ किया, बिकॉज देयर वाज नो कंस्ट्रेंट ऑन सैलरी. लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट था, तो वैल्यू देनी पड़ेगी. अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू दो, इंसर्ट इनटू फैकल्टी, वैल्यूज, फैकल्टी आईडी LDRP_CE_, मैं देता हूँ फिर से 2, मैं 2 देता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू, 2 तो ऑलरेडी है. उसका नाम है सपोज शिवांगी, और सैलरी है मानो कि 70,000 या 7,000 वॉट एवर. वंस आई विल ट्राई टू एंटर रन, मिसिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू फैकल्टी वैल्यूज. यूनिक कंस्टेंट वायोलेटेड. कौन सा कंस्टेंट, फैकल्टी, फैकल्टी आईडी PK. ओके, फैकल्टी टेबल, फैकल्टी आईडी कॉलम, और उसके ऊपर प्राइमरी की है यहाँ पे. I have provided the value 2, but it is already given to Pratik, so it will not provide the duplicate value. डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा, अदरवाइज हाउ वी विल आइडेंटिफाई शिवांगी एंड प्रतीक. दोनों को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का नंबर 2 है, LDRP_CE2. ओके, so why it is not allowed, because we have primary key on that. क्लियर, प्राइमरी की है तो वो नल भी अलाउ नहीं करेगा और डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ नहीं करेगा. ओके, दिस इज अबाउट द प्राइमरी की. फॉरेन की, this is very very important. See the figure, we have a departments table. In department table there are 4 columns: department id, department name, manager id and location id. ये 4 कॉलम डिपार्टमेंट के अंदर है. We have a employees table. उसमें कौन सी कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम और उसका डिपार्टमेंट आईडी. Now what it mean to say, where is the employee is working, employee is working in which department, let's say department number 10. So it will check that whether department number 10 is available in department table. So this is known as a dependency. This is actual meaning of relationship that we have seen theoretically. So we have created the relationship between employee and department table. So employee, एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको मिलेगा, वर्क्स इन, अगर मुझे ईआर डायग्राम ड्रॉ करना है वो भी देख लेते हैं. चलो, हाउ टू ड्रॉ ईआर डायग्राम. ओपन अ वेबसाइट draw.io. एक वेबसाइट है draw.io. क्रिएट न्यू डायग्राम.
we need entity relationship diagram. Select it and create. मैं सेव करूँगा उसको डेस्कटॉप के ऊपर ER1. See here, where something is given. Let us create new. So this is a symbol. Yes. ये क्या था? Department. Second entity is a इसका नाम है एम्प्लॉइज एंड आई नीड अ रिलेशनशिप. तो उसका सिंबल डायमंड है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्क्स इन. उसके एट्रीब्यूट देने हैं तो इलिप्स सिंबल है आपका. ये क्या है आपका? एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी. ये है आपका डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी. एक और रखते हैं भी, एम्प्लॉय का नाम क्या है. सेम वे हियर, डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट का आईडी एंड देन लेट्स से डिपार्टमेंट नेम. ओके, हो गया. इसको कनेक्ट करना है तो हम क्या लेंगे? एरो. इसको यहां से खींच के यहाँ पे लाओ. लेट्स एज्यूम दैट कि ये सब कनेक्टेड है. एक और भी कनेक्शन करना पड़ेगा हमें. कौन सा वाला? दिस. अगेन सेम एरो. Okay, now employee works in department, but which department? So department ID. So if I am working in department number 10, that means in a department table department number 10 must be there. वो होना चाहिए, otherwise मैं कहाँ काम करूँ? I am working in department computer department. So department ID is 10, department name is computer, manager ID is suppose 200, and location is first floor, second shift building, just for example. So this is my employee information. My ID is 100. I am working. My name is Ashish. I am working in department number 10. Department number 10 में that means this is the actual relationship. ये जो आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में है, this is here in ग्राफिक्स फॉर्म. जो हमने ER डायग्राम अभी देखा और उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. समझ में आ रहा है? ये पार्शियल डायग्राम है. आप एज्यूम करो कि यहाँ पे भी एक और एरो मैंने बनाया हुआ है एट्रीब्यूट के लिए. Okay, so this is actual meaning of relationship. फैकल्टी या फिर एम्प्लॉय इज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट, बट विच डिपार्टमेंट? वो डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टेबल में होनी चाहिए. इफ इट इज नॉट देयर देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. मेरा डिपार्टमेंट आईडी क्या है? 100. डिपार्टमेंट टेबल में जाओगे, 100 नाम का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है. तो या तो फिर डिपार्टमेंट टेबल में एंट्री नहीं है, या तो फिर एम्प्लॉय टेबल में एंट्री है, वो गलत है. कोई एम्प्लॉय इज नॉट वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 100. ऐसे डिपार्टमेंट में आप काम नहीं कर सकते जो है ही नहीं. So if we want to make such type of relationship, then in my parent table, department is a parent table, employee is a child table. In a parent table, create primary key.
पेरेंट टेबल में उसका जो आईडी कॉलम है उसके ऊपर प्राइमरी की बनाओ. वी हैव टू क्रिएट प्राइमरी की ऑन अ डिपार्टमेंट टेबल एंड इन अ एम्प्लॉय टेबल. एम्प्लॉय आईडी इज ए प्राइमरी की क्योंकि वो हर एक का यूनिक होगा. बट द डिपार्टमेंट आईडी इन विच द एम्प्लॉय इज वर्किंग, सी हियर, in a employee table there is the same column is there, department id. यहाँ पे department id है department table में. in a employee table we have to create again department id column and it is a foreign key. ये foreign key है. तो in a parent table you require primary key, in a child table you require foreign key, and this foreign key will reference to the department table. जब भी आप इसमें वैल्यू डालोगे, so if you have created the primary key and foreign key relationship, and whenever you enter the employee information, employee का id 200, employee name Ashish, department 100, so before inserting value into the employee table, it will automatically internally check department table whether the department number 100 is available. If it is available, then the employee information will be inserted into employee table. If 100 department number 100 is not available in department table, it will generate error. वो आपको एरर देगा. कौन सी एरर? पेरेंट की नॉट फाउंड. पेरेंट की फॉर अ डिपार्टमेंट कॉलम इज नॉट फाउंड. आपने डिपार्टमेंट की वैल्यू 100 दी है लेकिन डिपार्टमेंट टेबल में 100 नाम का कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं. क्लियर? सेकेंड थिंग, so this is a primary key foreign key relationship. Again, what is the another advantage of? हेलो, फॉरेन की. हेलो, हाँ हाँ बोलो. सर आप फॉरेन कीज और फॉरेन की रिकॉल करा. फॉरेन की वाला फिर से एक्सप्लेन करूँ? हाँ, फॉरेन की का मतलब क्या है? once we specify the foreign key on a particular column in a particular table, then it will automatically reference the parent table primary key. पेरेंट टेबल में प्राइमरी की होती है, चाइल्ड टेबल में फॉरेन की होती है. ओके, whenever we perform any data operation on a child table, it will automatically reference the parent table. वो parent table को ऑटोमेटिक रेफरेंस करेगा. किसके लिए? परफेक्शन के लिए. और अगर परफेक्शन होगा तो ही आपके एम्प्लॉय टेबल में ऑपरेशन होगा, अदरवाइज वो आपको एरर जनरेट करेगा. एज अ एग्जाम्पल, सपोज देयर इज न्यू एम्प्लॉय इज रिक्रूटिंग टुडे. उसका आज ही सिलेक्शन हुआ कॉलेज में. तो वो क्लर्क के पास जाएगा, क्लर्क को बोलेगा कि ये मेरी फॉर्म है, आप एंट्री कर दो. सो क्लर्क विल एंटर हिज एम्प्लॉय आईडी, हिज नेम एंड इन विच डिपार्टमेंट ही इज वर्किंग. तो कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगा? मानो कि क्लर्क ने एंटर की डिपार्टमेंट आईडी 100. वंस ही प्रेस ओके बटन, internally my database will check. Why? Because I have created the foreign key in a department id column. तो वो इंटरनली डिपार्टमेंट टेबल को चेक करेगा, देखेगा कि डिपार्टमेंट टेबल में 100 नाम का कोई डिपार्टमेंट है. अगर होगा तो एंट्री हो जाएगी, और अगर नहीं है, यहाँ पे डिपार्टमेंट 10, 20, 30, 40 और 50, 60 तक ही है, 70 के बाद नहीं है. तो 100 नंबर डिपार्टमेंट इज नॉट अवेलेबल इन डिपार्टमेंट टेबल. तो जैसे ही वो ओके करेगा तो आपको एरर मैसेज देगा, पेरेंट की नॉट फाउंड. मतलब पेरेंट टेबल मेरा कौन सा डिपार्टमेंट, उसमें प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी, पेरेंट टेबल में 100 नाम का डिपार्टमेंट ही नहीं है. तो ये एम्प्लॉई 100 नाम के डिपार्टमेंट में कैसे काम करेगा? समझ में आ रहा है? वो एलडीआरपी में फैकल्टी का नया रिक्रूटमेंट होता है, वो एडमिन को जाकर बोलता है कि मुझे केमिकल डिपार्टमेंट में काम करना है, लेकिन एलडीआरपी में केमिकल डिपार्टमेंट ही नहीं है. हमारे यहाँ कंप्यूटर, आईटी, ईसी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल एंड बस ये 5-6 डिपार्टमेंट है. मतलब 10, 20, 30, 40, 60, 70. यू हैव एंटर 100, बट 100 नाम का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है. तो इट विल नॉट अलाउ. वो आपको अलाउ नहीं करेगा, नहीं ही करना चाहिए. लेकिन ये तब पॉसिबल है अगर हमने प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप बनाया है तो. अगर नहीं बनाया है तो वो 100 वैल्यू ले लेगा. ये सब तो प्रॉब्लम. આ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એમાં 90 લખ્યું છે. नहीं, ये तो पार्शियल टेबल है, ये पार्शियल टेबल है. इसने जो एग्जाम्पल दिया है ना भैया, वो तो बहुत बड़ा है. आप देखो, आपके पास डिपार्टमेंट टेबल में कितने डिपार्टमेंट है. दिस इज एक्चुअल टेबल.
27 डिपार्टमेंट है, उसका आईडी देखो क्या है, 10 20 30 40 60 70 80 90 100 से लेके 270 तक है, 27 डिपार्टमेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये तो ले लेगा, ये जस्ट आपको स्नैपशॉट दिया है, आधा टेबल है यहाँ पे, बट अंडरस्टैंड द मीनिंग। दिस इज द वन एडवांटेज। व्हाट इज द सेकंड एडवांटेज? अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। whenever you remove any record from a child table, whenever you remove any record from the child table, now question is that whether it will allow or not. ओके okay. मानो कि आज मुझे कॉलेज बोल दे कि कल से आप कॉलेज में मत आओ, आज आपका लास्ट दिन है, तो एडमिन वाला क्या करेगा, मेरा रिकॉर्ड निकाल देगा कंप्यूटर डिपार्टमेंट में से, मेरा टेबल, मेरे जो टेबल है कंप्यूटर का टेबल, उसमें से मेरा रिकॉर्ड एम्प्लॉय नंबर 10 रिमूव हो जाएगा, इट इज फाइन, कल से नहीं आना। सेकेंड थिंग, now if college will decide that from tomorrow entire computer department will be closed, कल से पूरा कंप्यूटर डिपार्टमेंट बंद, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एडमिन को? एडमिन वाला क्या करेगा, डिपार्टमेंट टेबल में जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर 10 जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है उसको रिमूव करेगा। तो रिमूव फ्रॉम टेबल डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर 10, एंड प्रेस ओके। नाउ अगेन टू क्वेश्चन, क्या डिपार्टमेंट नंबर 10 रिमूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिपार्टमेंट नंबर 10 में 35 फैकल्टी काम कर रहे हैं। इफ एडमिन विल ट्राई टू डिलीट डिपार्टमेंट नंबर 10 कंप्यूटर डिपार्टमेंट, तो आपको वो दो चॉइस पूछेगा कि मैं डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट नंबर 10 तो रिमूव कर दूंगा, बट व्हाट अबाउट द 35 फैकल्टीज हु आर वर्किंग इन अ एम्प्लॉय टेबल? ऐसे 35 लोग हैं जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, तो क्या उनको रिमूव करना है? ऑब्वियसली ना, डिपार्टमेंट बंद हो गया मतलब फैकल्टी भी घर ही जाएंगे ना, कल से हमें भी नहीं आना है, तो वो पूछना चाहिए। इफ इट विल अलाउ ओके यस, तो उससे क्या होगा, वो रिकॉर्ड तो डिपार्टमेंट टेबल में से निकालेगा, एक रिकॉर्ड, कौन सा, जिसका आईडी 10 है, लेकिन इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय टेबल में जाके वो 35 रिकॉर्ड भी निकाल देगा बिना पूछे। समझ में आया? डिपार्टमेंट बंद, department number 10 is removed from the department table, then all employees who are working in a employee table whose department id is 10, they are also automatically removed, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, 500, 1000 हो या 1 लाख हो, सभी रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? उसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, नया वर्ड है आपके लिए। फॉरेन की इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या, once you remove some record from a parent table, then it will automatically remove the dependent child tables. समझ में आ रहा है? Once you remove any record from the parent table, it will automatically remove dependent records from child table. वो child table में से भी उसके dependent जितने भी record होंगे वो सबको निकाल देगा। That is your referential integrity। ये one option, वो निकाल देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि डिपार्टमेंट नंबर 10 रिमूव कर दो, कोई बात नहीं, कल से डिपार्टमेंट बंद, लेकिन गवर्नमेंट का रूल, सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है, डिपार्टमेंट बंद मतलब फैकल्टी भी बंद, कल से नहीं आना है। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट में कोई कॉलेज में कोई डिपार्टमेंट बंद हो जाता है तो उनके एम्प्लॉय जॉबलेस नहीं होते हैं, उनकी जॉब तो कंटिन्यू रहती है, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है या फिर दूसरी कॉलेज में ट्रांसफर दी जाती है ना। समझ में आया? सो अगर आपको ऐसा करना है, whenever you try to remove any record from a parent table, it will not automatically remove the data from the child table, वो remove नहीं करेगा, but it will make the department id value of those particular records null, उसको null बना देगा। मतलब डिपार्टमेंट नंबर 10 डिपार्टमेंट टेबल में से निकल जाएगा और जितने भी 35 एम्प्लॉय है जो एम्प्लॉय टेबल में है उनका डिपार्टमेंट आईडी जो अभी 10 है वो ब्लैंक हो जाएगा, नल हो जाएगा, उसकी वैल्यू निकल जाए, 10 थी वो नल हो जाएगी। मतलब राइट नाउ आपका रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट बंद हो गया लेकिन आपका डिपार्टमेंट जो 10 था वो निकल गया,
बट स्टिल यू आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? बाद में से क्या करेंगे, 5 लोगों को मैकेनिकल में डालेंगे, 5 लोगों को इलेक्ट्रिकल में डालेंगे, 5 लोगों को सिविल में डालेंगे, 5 लोगों को इसी में डालेंगे। तो 5 लोगों का डिपार्टमेंट नंबर 20 हो जाएगा, 5 का 30 हो जाएगा, 5 का 40 करेंगे, वो बाद में करेंगे। लेकिन राइट नाउ आपका डेटा रिमूव नहीं होगा। ओके, तो जो पहला वाला था जिसमें रिकॉर्ड निकल जाते थे उसको बोलते हैं ऑन डिलीट सेट। ये जो नल बनाते हैं हम कि पेरेंट में से निकालो तो इसको नल बना दो, उसको बोलते हैं ऑन डिलीट सेट नल। ऑन डिलीट फ्रॉम प्राइमरी की, सेट नल टू द फॉरेन की। बट हियर on delete cascade. What is meaning of on delete cascade? Once data is removed from the parent table, child table will automatically remove. That is on delete cascade. But हम डिलीट नहीं करते हैं, उसको नल बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑन डिलीट सेट नल। क्लियर? ये फॉरेन की का ये मतलब है, रिलेशनशिप का ये मतलब है। प्रैक्टिकली ऐसा होना ही चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ही डेटाबेस का मतलब है। हाउ टू डिफाइन द फॉरेन की? सर अब आखो देखो, टेबल निकली जाए कि खाली अंदर ना जाए टेबल ना तो નીકળે ભાઈ। ડિપાર્ટમેન્ટ ओके નંબર કોમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટ બંધ થાય તો બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા શું ગુનો કર્યો છે? એ તો ચાલુ રહેશે ને, કોલેજ થોડી બંધ થાય। હા, આખી એ કોલેજ નહીં બંધ સર થાય, એમ્પ્લોઈઝ વાળા ટેબલમાં કહો એમ્પ્લોય વાળા ટેબલમાં જે લોકો કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતા હતા એમનો જ રેકોર્ડ રિમૂવ થાય, બધાનો ના થાય। ઓકે ઓકે કારણ કે આપણે કયો ડિપાર્ટમેન્ટ રિમૂવ કર્યો છે? 10 કોમ્પ્યુટર। તો કોમ્પ્યુટર રિમૂવ કરો તો કોમ્પ્યુટરના રેકોર્ડ જ જાય ને ફેકલ્ટીના, બાકી તો ફેકલ્ટી રહેશે જ। એટલા માટે फॉरेन की डेफिनेशन इतनी लंबी है। इन अ एम्प्लॉय टेबल आई वांट टू क्रिएट फॉरेन की ऑन डिपार्टमेंट आईडी कॉलम। हाउ टू डू दिस? डिपार्टमेंट आईडी, कॉलम नेम, डेटा टाइप, उसकी साइज। अब कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम ये तो ऑप्शनल है, हमें देना है तो दे, वरना नहीं दे। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम क्या? कंस्ट्रेंट फॉरेन की ऑन विच कॉलम? You want to create foreign key on which column? Because we have these many columns: employee ID, last name, email ID, salary, commission, hire date, or department ID. We have 10 columns. So specify that on which column you want to create foreign key. So I have specified that I want to create the foreign key on department ID column. Okay, ये clear हो गया? Now second thing, अब ये किसको reference करेगा? References. References which table? Department table. Within the department table, which column? Department ID. Means in a department table, department ID is a primary key column, and in a employee table, department ID is a foreign key constraint which is referencing to this। मैंने रेफरेंस बोला ना कि आप अगर आप डिपार्टमेंट नंबर 100 देते हो तो वो अलाउ करता है कि नहीं करता है? वो इसके कारण करता है। हमने बोला है उसको कि जब भी एम्प्लॉय टेबल में वैल्यू आए तो पहले डिपार्टमेंट टेबल में जाके चेक कर लो कि ऐसा डिपार्टमेंट है तो ही जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर पेरेंट टेबल में से रिकॉर्ड निकालोगे तो उसकी इफेक्ट चाइल्ड टेबल पे क्या आनी चाहिए? चाहे वो नल हो जाना चाहिए या फिर डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये इससे होता है। फॉरेन की सिंटेक्स ये है। आपको ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सुनने से सब कुछ अच्छा ही लगता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपको कभी नहीं आएगा। और इसमें कोई चॉइस ही नहीं है कि आपको आए या ना आए, आपको आना ही चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ कंप्यूटर इंजीनियर। ओके, यहाँ तक रखते हैं। लेट अस टेक अटेंडेंस। जनरली लैब 2 घंटे की होती है, हमें लैब के लिए 1 घंटा मिलता है। तो यहाँ पे जो भी मैं डिस्कस करता हूँ, मैं जो आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो आप सिर्फ सुनते हो। एक्चुअल लैब में तो मैं देख भी पाता हूँ कि कौन क्या प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रैक्टिस का कोई स्कोप नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस खुद ही करना पड़ेगा। ओके, अभी इसमें थोड़ा बहुत बाकी है इस प्रैक्टिकल में।
लास्ट कंस्ट्रेंट इज चेक कंस्ट्रेंट। आप अटेंडेंस भर दो पहले। इसके बाद कोई लेक्चर है आपका? हेलो, हाँ सर। इसके बाद लेक्चर है? यस सर। किसका है? खुशबू मैम। ओके, यस, ठीक है। तो अटेंडेंस भर दो। ये चेक कंस्टेंट भी हम पूरा कर देते हैं, वैसे तो इजी है। हाउ टू प्रोवाइड द चेक कंस्टेंट? वेरी इजी। कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, कंस्ट्रेंट का नाम, उसके बाद चेक। और फिर क्या चेक करना है, ब्रैकेट में ये लिखो, चेक सैलरी इज ग्रेटर देन 0। तो जब भी सैलरी आप एंटर करोगे तो सैलरी की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो ही वो एंटर करेगा, अदरवाइज आपको एरर देगा। सेम वे फॉर सीपीआई। अगर आपने सीपीआई के बारे में हमने बात की थी, तो अगर सीपीआई के बारे में लिखना है तो हम क्या करेंगे? सीपीआई डेटा टाइप इज नंबर, 4,2, चेक। क्या चेक करेंगे? चेक सीपीआई शुड बी ग्रेटर देन 00.00 एंड सीपीआई शुड लेस देन 10.00 और फिर सेमीकोलन। ये टेबल खत्म हो जाएगा और फिर सेमीकोलन। ये आपका पार्शियल कोड है। यहाँ से आपका क्रिएट टेबल चालू था। क्या था? स्टूडेंट करके था, उसमें कुछ कॉलम थी आपकी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ऐसा कुछ किया था आपने। और फिर ये लास्ट कॉलम में आपने ऐसा रखा, चेक कंस्टेंट। तो कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, उसके बाद क्या चेक करना है वो ब्रैकेट में लिखो। अगर एक कंडीशन है तो इतना ही आएगा, दो कंडीशन है तो एंड आएगी। एंड और नॉट वो तो आपको पता है, सी में भी हम करते थे। तो अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो ही आपका डाटा एंटर होगा। तो दिस इज अबाउट द चेक कंस्ट्रेंट। ओके, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सर ये वीडियो मुक देंगे आप क्लास में? हाँ, वो सभी आ जाएगा, सभी वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी। लेक्चर लैब की मैं रखता ही हूँ, आप क्लासरूम में देख लेना। आज हाँ ही आ हाँ जाएगा ओके। या फिर मैक्सिमम कल तक आ जाएगा। कालनी भी ओके नहोती सर। है सर। कल का नहीं है, मैंने नहीं रखा अभी, मैं रख दूंगा। ओके सर। लेक्चर का इम्पोर्टेंट नहीं है, लैब का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं, चाहिए। ठीक है, यस सर। मैं लैब का रख दूंगा, डोंट वरी। सर ओके, हाँ बोलो। सर वो अभी मैं क्या करूं? वो